Good afternoon, respected Director Sir and esteemed staff of Higher Education Prayagraj. I extend my heartfelt gratitude to you for providing me with a wonderful opportunity to deliver a lecture in this studio. Myself, Dr. Pooja Kaushik, Assistant Professor, Department of Botany, Rajki Mahila Mahavidyalaya, Behed, Saharanpur. Today's topic of discussion is inculcating outcome and value-based education in higher education in NEP 2020 perspective. As we know that in 2020, new education policy was launched by the Ministry of Education and 8 foundational pillars of NEP 2020. First one is holistic and multidisciplinary education. Holistic and multidisciplinary education is focused on the broad-based learning rather than narrow specialization. Encourage integration of arts, science, humanities, sports, and vocational subjects and students and this NEP 2020 is focused complete holistic development of a student. So it is totally based on student centered education. Then second one is flexibility in curriculum. Flexibility in curriculum is NEP 2020 allows students to choose subjects across discipline without right boundaries. Promote credit transfer, multiple entry and exit points, interdisciplinary studies. For example, student can combine engineering courses with economics and arts. So in most of the higher education institutions like IIT, IIMs, and central universities and Institute of Science, they offers MSc, BTech with economics, BTech with other statistics, other subjects also. So it is totally provides flexibility in choosing any subject the what student want. आप स्टूडेंट्स जो है अपने चॉइस के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं जिस भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि वो इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमिक्स की स्टडी करे तो वो उस सब्जेक्ट को चूज कर सकता है ये ऑफर्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है करिकुलम में देन थर्ड वन इज focus on skill development and vocational education. So in NEP 2020 also integrate the practical skills, internships and vocational training into higher education. Students will prepare for their employability and they can start their own work. They and this parameters is also promote the entrepreneurship. Then fourth one is research, innovation and knowledge creation. NEP 2020 is focused the research, innovative ideas and knowledge creation temperament of a student. So at the graduation level, each and every students have submit their projects, research projects in different subjects. So they have developed the tendency to think, to innovate and deliver their knowledge in their own way. So research, innovation and knowledge is also a very important part which must be uh, incorporated in NEP 2020. Then fifth one is equity and inclusion. It ensures access to higher education for all, indulging marginalized communities like vulnerable sections of the society is also involved in higher education. हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो vulnerable sections है, vulnerable section is poor family, students belongs to a very poor families or village areas, rural areas. Students are not avail the higher education, but government initiatives towards government colleges like Rajkiya Degree College. I'm also the part of Rajkiya College. So we are focused on the education for the marginalized sections like vulnerable sections of the society. मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ it is also belongs to a rural area that is from Behed Saharanpur and more than 1,000 girls are studied there. वहाँ पर हम 1,000 से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा रहे हैं. उनके प्रोग्रेस में जो भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं.
पर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप सभी से। और चूँकि ये जो लेक्चर है ये सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना रही, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए है। हमारे साथ जो भी फैकल्टीज़ वर्क कर रहे हैं, हम उनके साथ अपनी कुछ बातें साझा करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं कि वो इस चीज़ को समझे कि हमें किस तरीके से जो हमारा सिस्टम आजकल आज तक इनपुट बेस्ड सिस्टम पे चल रहा था, हमें आउटपुट बेस्ड पे कैसे आना है। देन सिक्स्थ वन इज इंटरनेशनलाइजेशन, मीन्स हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी से जो भी बच्चे निकल रहे हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो। हमारा ये टारगेट है कि हम उन बच्चों को इतना ग्रूम करें, उनको इतना डेवलप करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। देन seventh one is use of technology. It is most important part in present scenario. Most of the students and faculties are use very less technology. So it is my humble request to all of you, kindly use the technology properly and हम उस पर बहुत काम कर सकते हैं। आज के समय में गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, दे आर बेस्ड पोर्टल बेस्ड इनिशिएटिव्स। लाइक अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक स्वयं इज वेरी गुड इनिशिएटिव, वेरी नाइस इनिशिएटिव। मैं खुद भी उसमें NPTEL की SPOC हूँ, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे कि बच्चों को हम डिलीवर कर इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ज्वाइन करें और क्रेडिट ट्रांसफर्स हों। और हमारे यहाँ बच्चे जो हैं अभी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, पर हमें इस पे काम करना है। एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे AI के बारे में जाने, हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे ऑनलाइन हम वर्क क्लासेस रन करते हैं उनको सीखें, ऑनलाइन किस तरीके से हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, हम ऑनलाइन कैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं हम बच्चों को सिखाएं और ये हम इसके थ्रू हम आउटकम पे आएंगे। आउटकम हमारा इसके थ्रू आएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी इस समय ऐसा पार्ट हो चुकी है कि हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते और इसने हमारे काम को बहुत इजी कर लिया है। लाइक मैं राजकीय महिला महाविद्यालय में सिंगल फीमेल स्टाफ हूँ और हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं, पर उन 1000 से ज़्यादा लड़कियों को मैनेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डेटा होता है। लाइक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा समर्थ में हमारे पास एक कंपाइल डेटा है जिससे कि हम बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे सकते हैं, उनको हम एक साथ उनकी गैदरिंग कर सकते हैं। बच्चों को हम उस पोर्टल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं और बच्चे भी अब धीरे धीरे उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन के सारे प्रोसीजर है, लाइक हाउ टू कंडक्ट एग्जाम्स एंड ऑल प्रोसेस वो हम समर्थ पे करते हैं। फिर अब रिजल्ट प्रोसेस भी समर्थ के थ्रू ही होंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्टल हम बात करेंगे अभी रिसर्च के पर्सपेक्टिव में ONOS है, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। शोध गंगा है, शोध चक्र है, शोध शुद्धि है। इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी ने इन्फ्लिपनेट सेंटर गांधीनगर में जो स्टैब्लिश किया है उसके थ्रू हम सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य जो भी काम है हम ऑनलाइन पोर्टल से करेंगे। तो मैं एज अ इन्फ्लिपनेट कोऑर्डिनेटर हूँ मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है बच्चों की जो PhD रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करके उनकी RDC DRC RSC सब कुछ ऑनलाइन करेंगे। और हमारे पास क्या होगा, एक कलेक्टिव डेटा होगा, डिजिटलाइज डेटा होगा जिसे हम इंस्टेंट कभी भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में आपकी लाइफ को इतना कंफर्टेबल कर रही है कि हमें हमारे लिए एक डेटा तैयार हो जाने के बाद से किसी भी काम को करना आसान हो जाता है और हम सभी को मिलकर ये काम करना है। नो डाउट कि एक इंसान तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सभी को मिल करके इस पे काम करना है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें फोकस करना है जो 8th पिलर है उस पे। इट मीन्स कि जो सबसे लास्ट पिलर बनाया गया है NEP 2020 का, दैट इज आउटकम बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि हमें यही चाहिए। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, वर्क डन इज इम्पॉर्टेंट। हमारी वर्क डन वैल्यूज जो है वो कभी जीरो नहीं रहनी चाहिए, वर्क डन वैल्यूज आनी चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका एक प्रोडक्टिविटी हमें शो होना चाहिए, हम उस पर काम करें। तो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग दिस टॉपिक एंड स्टार्टेड दिस वर्क। सो माय टॉपिक इनकलकेटिंग इस माइंड में हमें बैठाना है क्या कि हमें
और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना है। हम जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, लाइक कोई भी बच्चा डिग्री के लिए आता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, जो भी डिग्री हम लेने बच्चे आते हैं, तो हमें बच्चों को पहले उनके लिए एक रोड मैप तैयार करना है। हमें बच्चों के मन में बैठाना है कि हाउ टू गेट देयर डिग्री, एंड विद दिस डिग्री वो उस डिग्री के साथ और क्या क्या चीज़ें लेंगे जिससे कि उनकी लाइफ स्मूथ होगी, वो अपने मंजिल तक अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो हमने जब स्टार्ट किया आउटकम बेस्ड स्टडीज़ के बारे में स्टडी करना, तो मुझे ये लगा कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि हमें सबसे पहले अपने आप में वो कैरेक्टर्स, वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करने हैं जिससे कि हम किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट करी, लाइक हमें कोई भी सिलेबस, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है कि कोई बच्चा कहीं एडमिशन ले रहा है, वो बच्चा एडमिशन लेने के बाद सबसे पहला टारगेट है कि वो अपने सिलेबस को समझे, वो अपने कंटेंट को जाने कि उसे क्या करना है। दूसरी चीज़, उस बच्चे का माइंडसेट हमें इस तरीके से बनाना है कि वो बच्चा, क्योंकि हायर एजुकेशन में एक फैकल्टीज के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम वन बाय वन उसको स्पून फीडिंग नहीं करा सकते उस बच्चे को, लेकिन उसको हम डायरेक्शंस देंगे। और हम वो डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये इस तरीके से सिलेबस को स्टडी करना है, सिलेबस के पॉइंट वाइज कंटेंट्स तैयार करने हैं, ऑनलाइन कंटेंट्स तैयार करते हैं, और हम उनसे डायरेक्शन देते हैं, बेटा आपको इस तरीके से पढ़ना है। हम उन बच्चों को वो विजन देंगे जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और हम so we start this slide, higher education in India in current scenario। इंडिया में बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हुआ है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन की जो रेट है काफ़ी तेज़ी से इनरोलमेंट रेशियोज बढ़े, पर इनरोलमेंट रेशियोज के साथ साथ हमने देखा कि उसमें ड्रॉप आउट रेशियोज भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। बच्चे फर्स्ट ईयर किए, सेकेंड ईयर में ड्रॉप कर दिया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर में ड्रॉप कर दिया, या बहुत लंबा गैप हो जाता है बच्चों की पढ़ाई में। और उसके बाद कहीं भी किसी भी काम को करने में जब कोई गैप आता है तो बच्चे जो है उसको उनकी पढ़ाई में ब्रेक आने के बाद वो उस तरीके से स्मूथली नहीं पढ़ पाते जैसे कि एक रेगुलर स्टूडेंट पढ़ता है। तो हमें इस तरीके से उनका इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उनके माइंड को इस तरीके से सेट करना है कि वो गैप ना ले। लाइक मैंने अपनी जब पढ़ाई स्टार्ट की, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही। 2007 से जब मैंने बीएससी स्टार्ट किया, बीएससी, एमएससी, देन पीएचडी, वो मेरा कंटिन्यूएशन में रहा और मुझे बहुत ही अच्छी मेरी लर्निंग रही। जो मैंने वहाँ से सीखा वो मैं अपने स्टडीज़ मतलब अपने जॉब में अप्लाई करती हूँ। मुझे पता है कि बच्चों को हमें क्या देना है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि जब मैं फर्स्ट लाला किशन चंद गंगों में ज्वाइन करी, तो हमारे पास सिर्फ फाइनल ईयर में 10 बच्चे थे, और उन 10 बच्चों में मैंने बहुत मेहनत करी। तो हमारा एक स्टूडेंट जो है वो बनारस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ एमएससी बॉटनी। अभी वो एमएससी कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सीएसएआर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और उसके साथ ही कुछ और स्टूडेंट्स जो बच्चे उनको देख करके मोटिवेट हुई, और वो गुरुकुल में और अदर्स यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एडमिशन्स ले लिया। तो हमने कहीं ना कहीं उनको ये प्रमोट किया उन्हें ये कि आप हायर एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। हम कभी भी रिसोर्सेज की कमी है इसको लेकर के नहीं बैठ सकते। हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमें उसी यूटिलाइज करना है, और उस बच्चे को हमें इस इतना कैपेबल बनाना है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उस रिसोर्सेज के थ्रू अवेल कर सके कोई भी टारगेट जो है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेज का, हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इनरोलमेंट रेशियोज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो हमारा टारगेट है 2030 के लिए है या 2047 के लिए है, हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज़ की तरफ हम मूव कर रहे हैं, उसमें हमारा हायर एजुकेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारी जो है एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस है, रैंकिंग है, जो इवैल्यूएशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसे ये समझने के लिए कि हमें किस तरीके से हायर एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है। और हमें इसमें जो इनपुट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था हमारा कि हमें एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, हमें बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन देना है, हमें इन्वायरमेंट देना है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, चलिए हमने उसको बना लिया है, काफ़ी हद तक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीज़ें डेवलप है। बट हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है दैट इज आउटकम बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कि हम कितनी भी अच्छी चीज़ें जो लर्निंग्स है अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, हम उसी पर फोकस करेंगे। तो सेकंड था शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है वो
पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। हमारा जो सेंटर पे जो होगा वो स्टूडेंट पे होगा। हम उसके चारों तरफ अपनी एक ऐसी सराउंडिंग्स क्रिएट करेंगे, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि वो बच्चा इस तरीके से इनकलकेट हो, डेवलप हो कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। देन एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, मीन्स कि हमने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया है कि वो इतने स्किल्स उसके अंदर डेवलप किए हैं कि वो अपने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, अपने सिस्टम में ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। देन नीड फॉर क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो हम इस पे पूरी तरीके से काम करते हैं। और हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो लॉन्च सो मेनी पोर्टल्स विच इज़ वर्क ऑन इट। हम अगर जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल्स में बताया कि हमारा स्वयं है, ONOS है, शोध चक्र है, शोध शुद्धि है, शोध गंगा है, तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हुए हैं। आपके उन्नति भारत अभियान है, नट्स है, देन आपकी जो एक्रेडिटेशन सिस्टम्स हैं, असेसमेंट सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंडिया में और हम उस पर काम कर भी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक ऐसे फ्लो चार्ट में लाएं कि हमारा सिस्टम जो है स्मूथली रन करना शुरू करे। सो नो डाउट जब भी हम कोई काम करते हैं, चैलेंजेस मस्ट बी कम हियर। तो हमें ये सोचना ही नहीं कि हम काम करें तो हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम लोग फेस करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस को। मैं एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं कि मैं एक गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ। 1000 से ज़्यादा लड़कियां हैं, पर उनके सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं। वो लड़कियां गांव मतलब रूरल एरिया से आती हैं, 18 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, और रेगुलर उनके पेरेंट्स परमिशन नहीं देते कि आप रोज कॉलेज जाइए। उनका सिस्टम होता है कि मैम हम क्या मतलब हम सब वीक में 2 डेज आए तो हमारा काम हो जाएगा ऐसे। तो मैंने उनको बताया कि ठीक है, आप 2 दिन भी आ रहे हो, पर वो 2 दिन 100% दीजिए आप वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करें, और हम सभी फैकल्टीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दें, क्योंकि डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक 7th पिलर है NEP 2020 का, वो इसीलिए रखा गया है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो सोसाइटी है, उन तक हम अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एजुकेट करें, वो हम कर सकें। सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं इस पर फोकस भी करती हूँ। सो मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, ई कंटेंट्स तैयार करके हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और इस पर हम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसली काम कर रहे हैं। और मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि ठीक है, आप अगर नहीं भी आते तो एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है, आप उसमें प्रेजेंट रहिए। और हम उनको फोकस, वो बच्चे काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है बात होती है कि हम कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, कि आप सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मतलब जो भी कंटेंट हमारे सराउंडिंग्स में है, जो भी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें, जानें और समझें। आपको क्या मतलब अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आए। बट जो स्टूडेंट हमारे पास आता है, कल को वो एक जिले का DM भी हो सकता है, कहीं वो जज बन सकता है, कहीं वो प्रोफेसर हो सकता है, कहीं वो साइंटिस्ट होगा। तो डिफरेंट फील्ड्स में वो जाएंगे, तो वो जहाँ भी जाएं वो अपने काम को परफेक्टली कर सके, इसके लिए हमें उन्हें तैयार करना है। सो देन चैलेंजेस हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बच्चे जो है पढ़ाई में, जो कि बेसिक्स हम कह सकते हैं कि हम तो हायर एजुकेशन सिस्टम में हैं, हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनकी प्राइमरी लेवल की जो स्टडीज़ है, हमारी जो माध्यमिक लेवल की स्टडीज़ हैं वो वीक पड़ जा रही है। पर हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। हमारा ये भी टारगेट है कि हम हायर एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, तो मैं प्राइमरी लेवल और जो माध्यमिक है उनके साथ भी मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ, उनके साथ भी मैं लिंक्स बनाती हूँ। और अभी मेरे पास राष्ट्रीय सेवा योजना का चार्ज मुझे मिला इस साल से, तो मैंने अपने यहाँ जो कुछ अच्छी बच्चियाँ थी जो BCom BSc में एडमिशन ली थी, मैंने उनसे कहा कि आप अपने जो सराउंडिंग्स में प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स से आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पर आप बच्चों के साथ थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट होइए और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करिए जब भी आपके पास वीकडेज में टाइम मिलता है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप वहाँ जाकर के कुछ सीख सकते हैं, वहाँ से आपको सोसाइटी से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कमरे में बैठ करके ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ समाज की इस पार्ट में ये दिक्कत है। वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल होगा। अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ में इंडल्ज नहीं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप एक्चुअल प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बहुत दूर होते हैं। तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम समझने के लिए उस सिस्टम में आना पड़ता है। जब हम गवर्नमेंट सिस्टम में आए, मैं गवर्नमेंट एजुकेशन, चूंकि हमारी एजुकेशन ऐसी थी, सबने कहा आप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते थे आप, पर हम
मुझे पता है मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट सिस्टम के इस पार्ट पे काम करके बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं इस सोसाइटी के लिए काम करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा दूर है एजुकेशन सिस्टम से। उनके लिए काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे इसी पर इन्हीं पर काम करना है, इसी सिस्टम में काम करना है। और मैं पिछले 2 साल में, जब 2 साल ही हुए मुझे काम करते हुए, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल रहा है और मैं इसी पर आगे कंटिन्यूएशन में अपना काम कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। देन लिमिटेड फोकस ऑन एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये की चैलेंजेस हैं। जब मैं नई-नई कॉलेज में गई थी तो वहाँ पे जो लैंग्वेज थी, आई कांट एक्सपेक्ट दैट। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इस तरीके से सुनने को मिलेंगी बातें। बट मैं, चूँकि हम जिस जगह से बिलॉन्ग करते थे, जिस जगह से हमने शिक्षा ग्रहण की थी, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में संस्कारों के लिए, एथिकल वैल्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी तुम कह के भी हम लोग बात नहीं कर पाए थे किसी से। तो वहाँ तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज सुनने को मिली जिसमें कि बहुत सुधार करने की ज़रूरत थी। मैं बच्चों को हमेशा सिखाती रहती हूँ और उस पे हम काम भी करते हैं। देन अनइक्वल एक्सेस एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट, ये प्रॉब्लम भी बच्चों के सामने आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं कि रिसोर्सेज है, नो डाउट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने के बावजूद भी हम हमारे सामने कंस्ट्रेंट, लाइक एक अभी हमने एक ऑर्गेनाइज किया था, पीएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज आई थी जो कि गर्ल्स को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोडक्ट्स देना चाह रहे थे, लेकिन उनका कंडीशन था कि हाँ, बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट अवेल करेंगे, उनको हम किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी आई जिनके पास मोबाइल नहीं था। वो अपनी फैमिली में अपनी मदर के या भाई के मोबाइल को यूज़ किया करती थी, पर वो मोबाइल लेके नहीं आई थी, उनको वो सिस्टम, वो बेनिफिट्स वो नहीं उठा पाई। तो कहीं न कहीं गर्ल्स जो हमारे यहाँ स्टडी कर रही हैं, मोर देन 1000 गर्ल्स, उसमें से 30 टू 40% गर्ल्स के साथ में ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहती हैं और फैमिली फाउंडेशंस भी रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो हम, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमने उनसे बात करके जो है कुछ उनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम, हमने कहा ठीक है, हम डिफरेंट फॉर्म से इसको करवाएँगे और कॉलेज पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करता है इन चीज़ों में बच्चों को आगे लाने के लिए। द नीड फॉर द मेजरेबल लर्निंग्स एंड आउटकम, हमें बहुत ज़रूरत है बच्चों को ये बताने के लिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसका आउटकम बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, वर्क डन ज़ीरो है, तो इट मीन्स दे आर नथिंग, वो कुछ नहीं है। उनके, हमने बहुत पढ़ाई की, अगर फिर भी 35% मार्क्स बच्चे नहीं पा रहे हैं या वो फेल हो जा रहे हैं, इट मीन्स कि रिजल्ट इज़ ज़ीरो, रिजल्ट कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली आउटकम तो हमारा उन बच्चों से ही आना है और उन बच्चों पे ही हमें इसीलिए काम करना है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें रिजल्ट दें। उनका एक, उनके अंदर वो स्किल डेवलप हो, उनके अंदर जो एक टेम्परामेंट है एम्प्लॉयबिलिटी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, उसे हम डेवलप करें और वो अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लायक हो जाए। इस पे हम काम करने की कोशिश करें। देन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन। सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग मॉडल। लाइक पीडागोजी की हम बात करते हैं कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं लेक्चर दिए जा रही हूँ, बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो क्या रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा है, तो इट इज़ ज़ीरो, इसमें वर्क डन ज़ीरो है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा। स्टूडेंट सेंट्रिक मीन्स व्हाट, कि मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले उन्हें वो सिलेबस के साथ वो कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ कि हाँ, आपको ये स्टडी करना है और आप पहले पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे क्या नहीं समझ में आया। देन उसके बाद मैं उसको क्लास में पढ़ाती हूँ। जब हम क्लास में उसे पढ़ाते हैं तो बच्चों के जो फेस होते हैं वो जीरो नहीं, वो नील नहीं होते हैं, वो ब्लैंक नहीं होते हैं कि हाँ, ये क्या पढ़ाया जा रहा है। नहीं, उनके माइंड में एक फ्रेम बना होता है कि ठीक है, हमें आज एल्गी पढ़ाई जा रही है, फाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चे या माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनकी फ्रेम बना हुआ है कि हाँ, ये पढ़ना है हमें। फिर हम उन्हें थोड़ा सा, हमारे साथ चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो बच्चों को प्रैक्टिकल कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, पर चूंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज, मैंने बताया रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो रहती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चों को वो लर्निंग देते हैं, बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं और वो अपना उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी चल रही है, बच्चे अपना मोटिवेट होकर के उस चीज़ में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो हमने स्टूडेंट सेंट्रिक जो टीचिंग लर्निंग मॉडल है उसको अपने कॉलेज में स्टार्ट किया, अपने बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसमें इस तरीके से अब स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। और मैं जो है इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं
लाइक हमारा जो सिलेबस कंटेंट है, सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे बच्चे सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लें। जिस दिन बच्चों को सिलेबस समझ में आ जाता है, हमारे प्रोफेसर कहते थे हमेशा से कि सिलेबस अगर आपने माइंड में बना लिया है तो आपका माइंड मतलब 25% कंटेंट आपने तैयार किया है। क्यों? क्योंकि जब हम दिमाग में आपके सिलेबस रहता है तो हम कभी भी मोबाइल या कहीं भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक टॉपिक है लाइक एल्गी है, एल्गी में हमने डिफरेंट अच्छा पिगमेंटेशन क्या होता है, चलो ठीक है हम ऑनलाइन देख लिया। तो राह चलते भी हम उन चीज़ों को देखते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे काम है, तभी हम जो है हमारी जो स्टडी है वो कंटिन्यूएशन में रहती है। हमारे माइंड में सिलेबस अगर है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ पे सोचते हैं, अच्छा इसको स्टडी करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों को उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि उनका सिलेबस उनके माइंड में रहे और वो जहाँ भी उन्हें चीज़ें मिले वो स्टडी करें उसको। सेकेंड पॉइंट, डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड ही बी एबल टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी मैंने बताया कि हम लोग को स्टूडेंट को ही इस लायक बनाना है कि वो जाने कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उनके अंदर वो सारी क्वालिटी डेवलप करनी है। क्योंकि हम एक बहुत अच्छी संस्था से पढ़ के आए, हम बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, हम आईआईटी कानपुर से पढ़ के आए, हम आईआईटी रुड़की से पढ़ के आए, हम आईआईएम से पढ़ के आए। हम तो पढ़ के आए हैं, हमारा तो हो चुका है, हमने जो अवेल करना था उन्होंने, हमारे टीचर्स ने बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया। बट नाउ हमारा टर्म है कि हम अपना बेस्ट आउटपुट दें। तो हमारा आउटपुट तो हमारे स्टूडेंट्स देंगे, हमारा टारगेट जो है वो पूरा करेंगे। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया और उनका आउटपुट अच्छा रहा, इसमें वो उनके लिए गर्व की बात है। और मैं यहाँ पे इसलिए मैं अपने टारगेट्स की, अपने आउटकम की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चे हमारा रिजल्ट नहीं देंगे तो हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हमें आउटपुट तो उनसे चाहिए। अब हमें उन पर ही काम करना है कि हमारा प्रोग्राम जो भी है, जो हमारे कोर्सेज हैं, वो बेस्ट तरीके से हमारा रिजल्ट दे, और उसके लिए हमें स्टूडेंट्स पे ही काम करना है। देन कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम किसी भी बच्चे को 25% सिलेबस कवर करने के बाद हम, या 50% सिलेबस कवर करने के बाद हम मिड टर्म एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं। तो मिड टर्म एग्जाम्स जब कंडक्ट कराते हैं तो हमारा एक जो रिजल्ट आता है, हमें सही पता चलता है हमारा बच्चा जो है ये चीज़ें, इतना कंटेंट तैयार करके है, अब हम आगे इससे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एनईपी का, ये बेस्ट वे है। मतलब उन्होंने जो है जिस तरीके से प्लान किया हुआ है, हमें बस उसको फॉलो करना है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। और चूंकि जितनी भी बेहतरीन संस्थाएं हैं वो बहुत समय से इन सभी प्रोसेस को फॉलो करती थी, और हम जब बीएससी एमएससी कर रहे थे तो इन सभी चीज़ों को हमने फॉलो किया है। हम 2011 में मैंने एमएससी 2012 में एमएससी कंप्लीट की। उस समय भी हमारा सेमेस्टर सिस्टम था, मिड टर्म एग्जाम्स हुआ करते थे और प्रैक्टिकल असेसमेंट्स कंटिन्यूअस होते थे, असाइनमेंट सबमिट होती थी। तो वो सारे प्रोसेस, माइनर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, को करिकुलर होते थे। तो आज 2020 या 2026 जो चल रहा है उसमें ये चीज़ें हम कॉलेज लेवल पर भी 2020 के बाद से स्टार्ट हो गई हैं। सेमेस्टर सिस्टम अपने आप में बहुत ही बेहतरीन, नो डाउट एग्जामिनेशन बर्डन बहुत रहती है कि हर 6 महीने, मतलब 3 महीने 4 महीने बाद भी हमें एग्जाम्स में 1-2 महीने बीत जाते हैं। लेकिन उस दौरान ऐसा तो है नहीं एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो हम क्लासेस नहीं कंडक्ट कर सकते, या हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं सिखा सकते। बिल्कुल हमारा प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहेगा। एग्जामिनेशन के साइमल्टेनियसली हम अपने और जो काम है वो सारे करते रहते हैं। नेक्स्ट, then second point, that is value based education. It is very important. हम बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी सिखाएंगे, हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में हम इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं थ्रू स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, लेकिन ठीक है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली, मॉरली बच्चे को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल क्वेश्चन जो वैल्यू होती है वो बच्चों को मजबूत बनाती है हर तरीके से। सोसाइटी में जो भी प्रेशर होगा, जो भी कंडीशंस होंगी, उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? जब उनके अंदर वैल्यूज होंगी। हमें पता है कि अगर कोई हमारा बड़ा है, हमें उसे रिस्पेक्ट देना है, तो ऑब्वियसली जब हम किसी बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको अपने आप ही एक उसका आशीर्वाद है, उसकी ब्लेसिंग्स है, वो आपको मिलेंगी। हमारा छोटा है, हमारा जूनियर है, हमने उसे अगर अच्छे से उसे सिखाया है, उसके लिए कुछ किया है, तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं रिटर्न बैक में हमें मिलेगा। तो ये जो मोरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज होते हैं, सोशल वैल्यूज होते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए मैंने बताया कि हमें बच्चों के अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करने हैं, और हम इस पे अभी आएंगे हम कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स में
किस तरीके से बच्चों को इस काबिल बनाए कि उनका जो इमोशनल क्वेश्चन वैल्यूज़ है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन वैल्यू है, वो बैलेंस हो सके। हम इसमें जो पार्ट है आपका इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ जिसका अस्तित्व है, उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है और हमें उस पे फोकस करना भी चाहिए कि सपोज़ डार्विन ने कॉन्सेप्ट दिया है 3 इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ। स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। These 3 concept are very important कि कोई भी चीज़ मतलब जो इस अर्थ मतलब दुनिया में आई, ब्रह्मांड में आई, तो वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है और जो सर्वाइव करता है वो जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा एंड अल्टीमेटली नेचर सेलेक्ट करती है इस चीज़ को, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन नेचर सेलेक्ट किस बेसिस पे करती है? प्रीवियस टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। हम अस्तित्व के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम नेचर उसे तभी सेलेक्ट करेगी जब आपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया हो और आप उस इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कर लिए। इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा जो पहला स्टूडेंट था, जब मैं पहले कॉलेज लाला किशन चंद गंगो में पोस्टेड थी, वहाँ पे जो स्टूडेंट था मेरा बहुत मेहनती था। मैंने उसमें बहुत ही मतलब अपनी एनर्जी लगाई कि नहीं इसको पढ़ाना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। तो उसने मुझे रिटर्न में मतलब लिख के भेजा था मैसेज में कि मैम यू आर द पायनियर स्पीसीज। पायनियर स्पीसीज मीन्स व्हाट, जो बंजर लैंड को भी हरा भरा कर दे। ठीक है, तो हम उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहाँ पे अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स है भी तो हम उस रिसोर्सेज को उन सिस्टम्स को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि वहाँ पर एक हरियाली छाए। हम उस सिस्टम को इस तरीके से डेवलप करें कि हमारा जो सिस्टम है वो आपको एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट, जो कि हमारा हम जानते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारा इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा तो हमारा इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और हम लिविंग सिस्टम्स डेवलप हुए। तो नो डाउट आज के समय में भी यही रिक्वायरमेंट है कि हमें अपना सिस्टम अपना इन्वायरमेंट को बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग बनाना है ताकि हमारी लाइफ स्मूथ हो सके। ठीक, देन integrates human values with academic excellence. That's the most important part. हम मेरे अंदर अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है तो हम एकेडमिकली कितने भी स्ट्रॉन्ग हैं, शायद हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहेगा। हम किस पोस्ट पे बैठे हैं, किस पद पे बैठे हैं, अगर हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज नहीं रहेंगी तो वो पोस्ट वो पोजीशन भी हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा एक समय बाद। क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, ये हर किसी को पता है। और समाज में जिंदगी मतलब आपकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमें दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ एक बॉन्ड एक इंटीग्रेट मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होती है। सोसाइटी में उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, हम उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट, देन हाउ टू डेवलप द आउटकम एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। किस तरीके से हम डेवलप करेंगे? तो हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जो एनईपी ने बताया कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे, लर्निंग बेस्ड, हम स्टूडेंट्स को सेंटर में रखेंगे, उनके अंदर एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करेंगे। उस सभी चीज़ों के लिए हमने कहा कि हम सबसे पहले प्रोवाइड द पॉजिटिव एटीट्यूड्स। व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड्स की एक लिस्ट हम तैयार करें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में उसको फॉलो करने की कोशिश करें और हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी डेवलप हो जाए जिससे कि हम उस पोजीशन को होल्ड कर सकें, उस पोजीशन पे अपना आउटपुट दे सकें। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको जिम्मेदार होना है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी। तो हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए जिम्मेदार हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको पता है कि हमारा ये सिलेबस है, हमें पढ़ना है, आप बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपका काम है ये कर सकते हैं। कि कोई भी जो आपका बेस्ट मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ मुझे जो भी टारगेट मिल रहे हैं हमें उसे अचीव करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। then you will definitely achieve your targets. Then second one is be authentic. Be authentic in your intentions. आपकी जो इरादा है, जो आपकी बातें हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई स्टूडेंट ये कहे कि नहीं मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब मुझे 90% मार्क्स आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। बट जब रिजल्ट आया अगर वो 60% 55% पा रहा है, इट मीन्स देयर वर्ड्स आर नॉट ऑथेंटिक। हमें उस बच्चे को उस पर काम करने की ज़रूरत है
कि कहाँ उसने लैकिंग कहाँ उसकी कमी रह गई थी, किस तरीके से जो उसने कहा, मतलब एक तरीके से एडॉप्ट एक्सपीरियंस लर्निंग, मतलब उसके अंदर वो सारी चीज़ें इस तरीके से डेवलप की जाए कि वो जो बातें कह रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो, उसके इंटेंशंस जो है वो फुलफिल होने चाहिए। देन इंटीग्रेट्स एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमने कर ली। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फीडबैक असेसमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये जो हमारा रोल होता है यहाँ पे बच्चों के लिए, वो हमें कंटिन्यूएशंस में रखनी चाहिए। देन इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में थोड़ी सी कमी हो जाती है। हमें लगता है कि हाँ, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा जो है इंटरेस्ट ले और उस कंटेंट को पढ़े। तो उसके लिए हमने बताया कि हम डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। जैसे बच्चों को पहले छोटे छोटे नोट्स बना के मैंने दिया, बच्चों ने उसको पढ़ा, ने कहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, ठीक है। देन हम उसको जो स्मॉल, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में पहले स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस आते हैं। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। तो हमारा जो दूसरी प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है कि हमने बच्चों को जब हमने सिलेबस पढ़ाया तो सिलेबस में हमने बताया कि ये प्रॉब्लम, हमने कहा कि ये कंटेंट है, ये पढ़ के आइए। देन जब वो पढ़े तो उनको प्रॉब्लम समझ में आए कि हाँ, इट इज यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम एंड देन प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व। तो बच्चों को प्रॉब्लम समझने की और उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएटिंग बिहेवियर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर डेवलप करने के लिए हमें काम करना है। इस पे हमें फोकस करना है, उन्हें इस तरीके से प्रैक्टिकली स्किल्ड करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की तरफ मूव करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कम्युनिटी के साथ और लर्निंग उनकी जो हो वो सोसाइटी में हो। अगर कोई बच्चा सपोज बॉटनी का स्टूडेंट है, बॉटनी में उसको टेक्सोनॉमी पढ़नी है, तो टेक्सोनॉमी पढ़ने के लिए वो लैब में बैठ के टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ सकता। जब तक वो किसी बोटानिकल गार्डन में जाएगा, जब वो फील्ड में विजिट करेगा, तो सो मेनी प्लांट्स आर ग्रो देयर, और उसकी वो जाने अच्छा ये क्या है, अच्छा ये बिलोंग्स टू हिबिस्कस, इट इज रोज, इट इज मैरीगोल्ड। एंड अब वो खेत में जाएगा तो देखेगा हाँ ये वीट का प्लांट है, ये राइस है, इधर मस्टर्ड ग्रो किया। तो आपकी लर्निंग कहाँ है? आपकी लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हमारी लर्निंग जो है वो कम्युनिटी में, हमारे सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से ओपन है और हम उस पर काम करते हैं। देन आईसीटी इनेबल्ड एंड ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोप्रिएट। लाइक हमने कहा कि हम चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो मैं सिंगल टीचर में बॉटनी पढ़ा रही हूँ, अब मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबको पढ़ाना है, सबको प्रैक्टिस कराना है। उसके अलावा भी मेरे पास, जैसे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होते हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बच्चों को एटलीस्ट जो हमारे कंटेंट्स हैं, हमारे सिलेबस उन तक पहुँचे, उसको समझें और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर डेवलप करते हुए उनको सिखाएं। देन इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिसर्च ड्रिवन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी मींस व्हाट, कि मैं इन्वायरमेंट में काम करी थी, मेरा पीएचडी इन्वायरमेंटल साइंस में था। तो इन्वायरमेंटल साइंस में मैंने बायोकेमिस्ट्री का भी काम किया, मैंने जियोलॉजी का भी काम किया, लिम्नोलॉजी का काम किया, एटमॉस्फेरिक साइंसेज में काम किया, सीवेज ट्रीटमेंट में काम किया। तो डिफरेंट डिसिप्लिन थे जिसपे हमने काम किया। स्टैटिस्टिक्स सीखी, स्टैटिस्टिक्स सीखने के बाद कंप्यूटर बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएचडी में, तो हमने वो भी सीखा। तो इट मीन्स कि हमने हमारा जो रिसर्च ड्रिवन एजुकेशन था, उसमें हमने बहुत सारे डिसिप्लिन सीखे और हम आज उसको अप्लाई भी करते हैं। तो ये इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज है, इस पर हम काम कर रहे हैं। देन रोल ऑफ आउटकम एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एनईपी, हमने बताया कि इट इज द 8th पिलर ऑफ द एनईपी 2020, आउटकम बेस्ड एंड वैल्यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। इफ प्रोडक्टिविटी इज जीरो, इट मीन्स हमारे सारे टारगेट जो ऊपर के हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो आउटकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनईपी 2020 एंड मैं इस पर फोकस करना चाहती हूँ कि हमें बच्चों के अंदर आउटकम बेस्ड और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को डेवलप करते हुए हमें अपना रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट देना है फ्यूचर में। और हम कंटिन्यूसली इन जो हमारे सिस्टम में अभी जितने भी पोर्टल्स रन कर रहे हैं, बच्चों को उनसे अवेयर कराना, खुद भी उस पर काम करना, अपने रिसर्च सेक्शन को डेवलप करना, बच्चों के अंदर एक स्किल्स डेवलप करना, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप टेम्परामेंट डेवलपमेंट करना, इस सभी पे हमें बहुत ही रिगरसली काम करने की जरूरत है और हम कर भी रहे हैं। नो डाउट स्टार्ट किया हुआ है, चल रही है प्रोसेस में, पर थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है। इस पे मैं फोकस करूंगी। देन impact of outcome based and value based education every subjects, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कि हमें आउटकम नहीं चाहिए,
हर सब्जेक्ट पे हम जो भी संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, सभी की सब्जेक्ट्स की इक्वली इंपॉर्टेंस है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ सिर्फ बॉटनी इंपॉर्टेंट है, नहीं, मैथमेटिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट्स की अपनी वैल्यूज हैं। सोशियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज द बेस्ट सब्जेक्ट, देन फिलोसफी इज ऑल्सो वंडरफुल सब्जेक्ट्स। तो हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट में हमें इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट्स है, हमें उसमें बढ़ावा देना है। देन हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, उसको हम कैसे लिंक करेंगे सराउंडिंग्स के साथ, लाइक इंडस्ट्रीज के लिए हम रेडी कर रहे हैं, सोशली उनको रिस्पॉन्सिबल ग्रेजुएट्स बनाएंगे, देन मैक्सिमाइज द आउटपुट विथ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि रिसोर्सेज की कमी तो है, बट हम उस कमी को लेकर नहीं बैठेंगे, जो रिसोर्सेज हमारे पास है हम उस पर मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए कोशिश करेंगे। डेवलपिंग बेस्ट आउटपुट विथ मिनिमल रिसोर्सेज, तो हम आउटकम क्लैरिटी, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम। नो डाउट कि अगर हम एक रोड मैप बना लेते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना है, लाइक अभी गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज यूपी प्रमाण। यूपी प्रमाण में हम कंसाइज करेंगे सभी डेटा को, मतलब कॉलेज में या किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है, उसका पूरा डेटा हमें ऑनलाइन पोर्टल्स पे मतलब महीने की 5 तारीख में हमेशा सबमिट करना है। तो उस तरीके से हम उस पर काम करना शुरू किए हैं कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा को अपलोड करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट का, और हम इस पे काम करके बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारा जो डेटा है वो कंपाइल हो रहा है। हमें एटलीस्ट ये तो पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वर्क के लिए। लाइक हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं और फाइनल रिजल्ट एंड डिस्कशंस की बात आती है, देन कंक्लूड करते हैं। तो सिमिलरली हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम रिसर्च ड्रिवन होना चाहिए और हम उस पर फोकस कर, जैसे हमने एक प्रिंसिपल बना लिया है, एक हाइपोथेसिस बनाई, देन उस पर हमने अपना एक मेथड डेवलप किया है, लाइक जो पोर्टल्स हैं वो, उस मेथोडोलॉजी पे काम करके हमने डेटा कलेक्ट किया है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसके रिजल्ट एंड डिस्कशंस की बात करेंगे एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे कि हाँ कहाँ पे हमारी वीक पॉइंट हो रही है, कहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है उस पर हमें कैसे काम करना है, इसको हमें उस पर करना है। तो मिनिमम रिसोर्सेज होते हुए भी हमें बेस्ट आउटपुट देना है उसमें, और इस पर हम काम कर भी रहे हैं। और बच्चों को इनकरेज करना है सेल्फ लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स के लिए। बच्चों को इफिशिएंट, जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, फैकल्टी एक्सपर्टाइज है, उनका इफिशिएंट यूज हमें करना है। Then conclusion, out-based and outcome-based and value-based education ensures the measurable academic excellence. So academic excellence के लिए ये दोनों ही part जो है बहुत ही important है। Like outcome और value-based education जो है builds a strong character, and together they create a holistic, skilled and ethical graduates, and essential for achieving vision of NEP 2020 pathway towards the quality, equity and global leadership in education. So thank you so much for this wonderful lecture, and it's my pleasure. Thank you so much sir. अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और डायरेक्टर सर को, सभी स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली अपनी बात कहने के लिए। और मैं बच्चों को भी मतलब फैकल्टी मेंबर्स के साथ ही बच्चों के लिए एक मैसेज दूंगी कि जो आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट आउटपुट जो है वो आप है हमारे लिए। तो हमें आपको यहाँ से सीखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके अंदर इनकलकेट होना ज़रूरी है, जिसमें कि वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर अगर वैल्यूज़ नहीं होंगी तो यू कांट स्टे, यू कांट होल्ड योर डिग्निटी, योर पोजीशन। सो वैल्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट करिए और बेस्ट आउटपुट दीजिए विथ मिनिमम रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच।